Hello student, welcome to my class and today we are going to learn about application of Biosavart law. This is my lecture number 6 and this one is again a very applicable topic. We have discussed about so many topics under current and magnetism topic unit, and afterward we will learn about the uses of Biosavart law, application of Biosavart law. That means we are going to find out the magnetic field due to straight wire, due to circular wire, due to different shape current carrying wire. This is so much we did today, but still I am here to teach you, to tell you about this magnetic chapter, which is very interesting. And let's start with this. So here, the first application of Biosavart law. We will take one straight wire of finite length. So let's start. Straight wire, current carrying wire. Take it, current carrying wire of finite length. What we have to do, you can go to my previous lecture, you will see the Biosavart law detail, how to apply the Biosavart law, and here in this class we are going to discuss the application, how to use Biosavart law to find out the magnetic field. Okay, so we have to take a straight wire of finite length having current. Current is the main source of magnetism that we have been discussing in this chapter. So let's start. This is a finite length straight wire. Okay, let the length of this wire is given by CD. Okay, this straight wire, and there is a point P where we have to find out the magnetic field due to this finite length straight wire. Okay, got it? Now what we have to do, first of all we will take the exact horizontal position of this point P from the straight wire and let this distance is A. Okay. Secondly, we will take a small element of straight wire here. Let the small element of this straight wire is AB. हमें small element क्यों लेना है? क्योंकि Biosavart law में जो लेंथ ली गई है वो स्मॉल लेंथ ली गई जिसे हम कहते हैं करंट एलिमेंट. तो हमें यहाँ पर एक स्मॉल करंट एलिमेंट लेना है, उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसी मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट कर देंगे. देन वी कैन गेन द ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस फाइनाइट लेंथ वायर. दिस इज AB current element and the length of this AB is DL. Okay, so total length should be CD because it is a finite length straight wire. So DL is the element and I is the current flowing through this element AB. Now let us take this distance, that B point distance from the P point is R, and we can take one perpendicular line so that the total length, if this point is M, then BM is the length that convert the BP distance equal to the MP distance. Here BP is equal to MP. Got it? So this one is the situation. Let the angle by this line BP, that is phi. Okay, and the maximum angle that can be drawn by this C element, C point, this one angle is phi 1, and the angle from the D point, that angle is phi 2. Are you getting it? Phi, ये जो phi है वो कितना है, जो R मीन्स BP लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन से जितना एंगल बना रही है वो है फाई. उसके बाद हमने क्या किया, जो CP लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल बना रही है, दैट मीन्स इसको अगर हम O पॉइंट ले लेते हैं तो OP लाइन से जितना एंगल बना रही है दैट इज फाई 1. हमें इंटीग्रेट जब करेंगे आगे तो फाई 1 और फाई 2 तक का इंटीग्रेट करना है. ठीक है,
phi is the angle from the BP line to the OP line, okay, in between BP and OP line. So ये जो हमने स्मॉल एलिमेंट लिया ये भी एक एंगल बना रहा है और इस एंगल को हम ले सकते हैं लेट दिस एंगल इज डी फाई. हमें एक्चुअली इसी एंगल को यूज करना है इंटीग्रेशन से पहले, ठीक है. तो दिस वन इज डी फाई एंड दिस वन इज स्मॉल करेंट एलिमेंट. आर इज द लेंथ एंड वी हैव टेकन a perpendicular line BM such that AP line is now separated in two parts, AM and MP. Now MP is equal to BP. This I have mentioned here. So MP is equal to BP is equal to R. This one is the total length corresponding to the point P. हमने ऐसा क्यों किया है ताकि हमें जो ये आपका एंगल है डी फाई इसको हम रेडियस फॉर्म में लिख पाए. एंगल इज इक्वल टू आर ओवर रेडियस होता है. तो आप देख लो कि ये जो एम पी लेंथ होगी वो आर के इक्विवेलेंट हो जाएगी क्योंकि हमने परपेंडिकुलर लाइन इस तरीके से ड्रॉ की है कि ए पी लाइन ऑलरेडी बड़ी थी बी पी लाइन से और हमने परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ करके एम पी लाइन को बी पी लाइन के इक्वल कर दिया, ठीक है. सो दिस वन इज द ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन कोरस्पॉन्डिंग टू द दिस सिचुएशन दिस टॉपिक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर. अब हम इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले हम बायो-सैवर्ट लॉ लगाएंगे किस एलिमेंट के लिए, डी फाई एलिमेंट के लिए, ठीक है. सो बायो-सैवर्ट लॉ ये कहता है कि अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू करंट एलिमेंट आईडीएल, सो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आईडीएल साइन थीटा. नाउ व्हाट इज साइन थीटा हियर? तो बायो-सैवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग इसमें क्या आ रहा है कि थीटा जो होता है साइन थीटा जो हम यहाँ पर रखते हैं वो साइन थीटा कौन सा होता है? थीटा इज द एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी एंड द करंट एलिमेंट. करंट एलिमेंट ये है और पी पॉइंट के बीच में. तो यहाँ पर देखो तो करंट एलिमेंट ये है और पी पॉइंट का ये जो यहाँ पर पूरा पी पॉइंट आ रहा है उसके बीच में एंगल बन रहा है BAM एंड दिस एंगल लेट इट बी थीटा. बोर्ड पे इसको थोड़ा सा आपको जूम करना पड़ेगा, इसको देख लेना. जब जूम करोगे तो देखो एंगल ए की वैल्यू है थीटा. तो यहाँ पर दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी और यही एंगल यहाँ पे बायो-सैवर्ट में यूज होता है. तो हमें यहाँ पर आइडियल साइन थीटा रखना है और आप यहाँ पर ये ट्रायंगल लोगे ABM. तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इस ट्रायंगल में वैल्यू निकाल लेते हैं. क्यों? क्योंकि हमने तो यहाँ जो एंगल का सेपरेशन किया हुआ है सब फाई के फॉर्म में किया हुआ है. तो ओवरऑल हमें थीटा तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए फाई. अब हम फाई में किस तरीके से लाएंगे, इसलिए हमने ट्रायंगल ले लिया ABM. अगर इस ट्रायंगल में देखो तो साइन थीटा एंगल ए इज साइन थीटा, एंगल ए इज थीटा. सो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. दैट मीन्स BM ओवर हाइपोटेन्यूज इज AB. तो BM की वैल्यू यहाँ पर ये देखो BM की वैल्यू आप यहाँ इस ट्रायंगल के थ्रू निकाल सकते हो, ठीक है. अब यहाँ पर BM की वैल्यू कितनी आ जाएगी? BM इज इक्वल टू AB साइन थीटा. AB क्या है? वो एलिमेंट है जिसकी लेंथ हमने कितनी दी हुई थी? DL. तो यहाँ पे आ जाएगा DL साइन थीटा. यही DL साइन थीटा फॉर्मूले में यूज हो रहा है. तो दैट मीन्स ये DL साइन थीटा की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? BM. सो दिस BM इज कोरस्पॉन्डिंग टू DL साइन थीटा. जो हमने स्टार्टिंग में बायो-सैवर्ट फॉर्मूला लिखा है, दिस इज बायो-सैवर्ट फॉर्मूला. अब यहाँ पर हम चेंज कर देंगे, दैट इज DB इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई DL साइन थीटा की जगह हमने रख दिया BM, ठीक है. BM ओवर R स्क्वायर. R ही अपने लिए हुई थी डिस्टेंस, पोजीशन ऑफ द पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू करंट एलिमेंट. अब हमें BM चाहिए. तो BM आप देखो मैंने यहाँ पे जो MP ली थी लेंथ, MP इज इक्वल टू क्या है? BP. तो यहाँ पे मेन फैक्टर है MP इज इक्वल टू BP. तो जब लेंथ इक्वल है तो दिस इज अ पार्ट ऑफ ए सर्किल. ये जो स्मॉल BM पोर्शन है इट इज अ पार्ट ऑफ ए सर्किल. यहाँ पे सर्किल में हर एक आप एलिमेंट अगर लोगे तो उसकी लेंथ सेंटर से सेम होती है विच इज इक्वल टू द रेडियस. यहाँ पे इस फिगर को देखो, ठीक है. तो रेडियस होती है. तो ये हो गया आर्क, दिस वन इज BM. यहाँ पर जो BM ली है दिस वन इज आर्क एंड द लेंथ इज सेम दैट इज R. तो एंगल जो इनके बीच में होता है यहाँ पर इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? D फाई हमने लिया हुआ है.
इनके बीच में एंगल ले लिया डी फाई। तो एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओवर रेडियस। तो आर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस। ठीक है, आर्क की वैल्यू यहाँ पे क्या है, बी एम ओवर रेडियस की वैल्यू आर। सो दिस इज डी फाई। सो बी एम की वैल्यू कितनी हो गई, आर डी फाई, यहाँ से आ जाएगी। ये एक अलग फिगर में आप समझ सकते हो, इस फिगर को भी बना लेना ताकि अंडरस्टैंड रहे कहाँ पे चेंज हो रहा है। सो बी डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई इंटू, इन प्लेस ऑफ बी एम वी आर राइटिंग हियर नाउ आर डी फाई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। हो गई है। अब यहाँ पर जो आर डी फाई आया है, इसमें नीचे आर स्क्वायर है, ये एक टर्म कैंसिल हो गया। ओके, अब इसको मैं रफ कर देती हूँ। We need space here. So dB is equal to mu naught over 4 pi I d phi over r आ रहा है। अब यहाँ पर d phi की वैल्यू देखो, दिस वन इज d phi। अगर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, पहली चीज तो ये कि r d phi था, d phi रह गया। अब ये जो d phi है, दिस वन इज व्हाट, इट इज द एंगल। तो इस d phi को हम मैक्सिमम किस लिमिट तक हमें ले जाना है, किस रेंज तक, CD रेंज तक ले जाना है। दैट मीन्स phi 1 और phi 2 तक हमें इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस पूरे टर्म को dB को इंटीग्रेट कर देंगे। सो नेट B मैग्नेटिक फील्ड शुड बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB विच इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई, आई भी आपने बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन के अंदर रखा d फाई ओवर r। ये पूरा इंटीग्रेशन टर्म है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट कहाँ तक जा रही है, phi 1 तक, और मिनिमम लिमिट phi 2 तक। phi 2 नीचे के डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल लाइन से, इसलिए हम यहाँ पर माइनस में रखेंगे, माइनस phi 2 और यहाँ पर प्लस phi 1। ये लिमिट हो जाएगी। हमने नीचे से ऊपर तक पूरा वायर ले लिया, ठीक है, एंगल के फॉर्म में। तो यहाँ माइनस phi 2, क्योंकि phi 2 हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे है, नेगेटिव एंगल बन रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस phi 2 रखना पड़ा है। ठीक है, तो ये टर्म आपका आ गया। अब यहाँ पर देखो r जो इंटीग्रेशन लिमिट के अंदर है, उसको हम d फाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि क्या ये r कन्वर्ट हो सकता है फाई के फॉर्म में। तो उसके लिए हमने यहाँ पर फाई एंगल लिया हुआ था। अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल लेते हैं BOP। कौन सा ट्रायंगल है, BOP। अब BOP ट्रायंगल में आप देखो तो ये फाई एंगल आ रहा है और ये r इसका हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो फाई एंगल और r के रिस्पेक्ट में देखो तो हम इसको यहाँ पर cos फाई अगर हम लेते तो cos फाई का मतलब क्या हो जाएगा, बेस यानी a ओवर हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, BP। तो इस एंगल के बेसिस पर अगर हम लेना चाहें, इस ट्रायंगल के बेसिस पर, सॉरी, दैट इज cos फाई इज इक्वल टू बेस दैट इज a ओवर हाइपोटेन्यूज इज r। इट इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a ओवर cos फाई। इस r की वैल्यू को हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे, जो हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन में टर्म्स रखा था, ताकि जो पूरा फॉर्म है हमारा फाई के फॉर्म में आ जाए। सो नाउ वी आर पुटिंग दिस वैल्यू हियर, वी विल गेट इट b इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई i इंटीग्रेशन r की जगह पे ये टर्म रखो, r डिनोमिनेटर में, तो a डिनोमिनेटर में आ गया और cos फाई ऊपर चला गया, cos फाई d फाई एंड लिमिट इज माइनस phi टू phi 1। ठीक है, अब हमारे लिए सिंपल हो गया। जितना था डिफिकल्ट पार्ट, जितना कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था फिगर का, वो सारा सॉल्व हो चुका है। उसके बाद सिर्फ आपको ये इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, नाउ दिस b इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई i ओवर a को भी हमने बाहर निकाल लिया। क्यों, क्योंकि a तो कांस्टेंट वैल्यू है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पॉइंट p की चेंज नहीं होगी। So that is why I over a integration limit minus phi 2 phi 1 cos phi d phi। ठीक है, अब आपने क्या किया कि cos phi को इंटीग्रेट कर दिया। क्या होता है इंटीग्रेशन cos phi का, cos phi का इंटीग्रेशन sin phi। ठीक है, sin phi का अगर इंटीग्रेशन करते तो माइनस cos phi आ रहा होता, तो यहाँ पर क्या आएगा, sin phi। आपने इंटीग्रेट करा sin phi, लिमिट रख दी माइनस phi 2 एंड phi 1। ओके, अब आप यहाँ पर इसको लिमिट को अप्लाई कर दो, म्यू नॉट ओवर 4 पाई i ओवर a विद इन ब्रैकेट
साइन फाई 1 एक बार अपर लिमिट रखी माइनस दूसरी बार साइन, इसमें साइन के फाई के साथ में इसकी लोअर लिमिट रखी, तो फाई के प्लेस में अगर हम लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा साइन ऑफ माइनस फाई 2। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक बस मैथमेटिकल लॉजिक चलता है, बाकी कुछ नहीं। सो मैथमेटिकल लॉजिक ये है कि साइन इज एन ऑड फंक्शन। साइन क्या होता है? ऑड फंक्शन। इसको नोट डाउन कर लो। साइन इज एन ऑड फंक्शन मीन्स क्या होता है ऑड फंक्शन का कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा होता है। कॉस इज एन इवन फंक्शन। आप आगे की क्लास में जाओगे तो आप फूरियर एनालिसिस पढ़ोगे, उस फूरियर एनालिसिस में आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है इससे रिलेटेड टर्म सारे बताए जाते हैं। सो यहाँ पर आप अगर अप्लाई करते हो देन b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर ए साइन फाई 1 और माइनस फाई 2 था, और फंक्शन में माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस साइन फाई 2। सो दिस वन इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। ओके, तो बायोसेवर्ट लॉ कितना एप्लीकेबल है आप देख रहे हो। अगर आपको ये बेसिक फॉर्मूला नहीं पता होता बी का तो आपके लिए निकालना इजी नहीं था कि आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाते। सो दैट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ बायोसेवर्ट लॉ, इट इज वेरी हेल्पफुल। सो दिस वन इज द फॉर्मूला फॉर फाइनाइट लेंथ स्ट्रेट वायर। आप नोट डाउन कर लो इसे। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड at point P due to finite length straight wire। अगर किसी फाइनाइट लेंथ को हम इनफाइनाइट कर दें, इनफाइनाइट हो जाएगी अगर वैल्यू, तो क्या होगा कि जो C और D हमने बनाए थे उसको एज्यूम करो। मैंने फिगर तो रब कर दी। एज्यूम करो ये जो वायर है, ये एक वायर है, इस वायर को आप लंबा करते जा रहे हो, खींचते जा रहे हो, इनफाइनाइट लेंथ हो जाएगा। सी और डी पॉइंट कहाँ जा रहे हैं इनफाइनाइट में। तो ये जो पी पॉइंट है ये जब इनफाइनाइट से एंगल बना रहा होगा, देखो जब इतना छोटा है ये वैल्यू और पी पॉइंट हमने सेंटर पोजीशन से लिया है, तो क्या हो रहा है कि एंगल जो बन रहा है दैट इज फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन अपर पार्ट यानी सी पार्ट का जो एंगल बन रहा था वो कितना बन रहा था दैट इज फाई 1। अब अगर हम इसकी लेंथ को बढ़ा दें यानी ये और ऊंचा हो गया तो हॉरिजॉन्टल से एंगल भी क्या होगा इंक्रीज हो रहा है। आप ये देखो मेरा तो इंक्रीज हो रहा है, देन और इंक्रीज होगा, देन और इंक्रीज होगा। तो दैट मीन्स क्या हो रहा है कि जैसे जैसे ये लेंथ ऑफ द वायर बढ़ रही है वैसे वैसे उस पॉइंट पी की जो एंगल बन रहा है एक्सट्रीमिटीज से यानी सी और डी पॉइंट से वो एंगल भी बढ़ता जा रहा है। इसी के ऊपर दूसरा लगा दिया, इसी के ऊपर नेक्स्ट लगा दिया, तो ये वायर की लेंथ बढ़ती जाएगी। ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन से जो पी पॉइंट का एंगल है वो भी इंक्रीज होता चला जाएगा। मैक्सिमम लिमिट अगर हम इनफाइनाइट कह रहे हैं तो इनफाइनाइट को हमने नहीं देखा, ठीक है। तो वो एंगल बढ़ते बढ़ते अपनी मैक्सिमम लिमिट किस एंगल तक पहुंचेगा। अगर ये एंगल बढ़ रहा है, ये एंगल बढ़ रहा है, ये एंगल बढ़ते बढ़ते किस लिमिट तक पहुंच सकता है मैक्सिमम। आया समझ में? कहाँ तक पहुंच रहा है 90 डिग्री तक। तो फाई 1 की वैल्यू और फाई 2 की वैल्यू मैक्सिमम अगर नीचे भी बढ़ता जा रहा है वायर तो लिमिट इंक्रीज होते होते कहाँ तक जाएगी 90 डिग्री तक। तो मैक्सिमम एंगल फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू फॉर इनफाइनाइट लेंथ वायर वो कितनी हो जाएगी 90 एंड 90। सो वो वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, तब हम यहाँ निकाल सकते हैं इनफाइनाइट लेंथ वायर के लिए। सो इनफाइनाइट लेंथ वायर के लिए इसी फॉर्मूले से अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो वो वैल्यू यहाँ पर हमें क्या करना है b की वैल्यू दैट b इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर a साइन 90 प्लस साइन 90। सो दिस वैल्यू विल कम एज म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर a 1 plus 1 2। So that will come as mu naught over 2 pi a I। So that is the value of magnetic field due to infinite length straight wire. So this is magnetic field due to infinite length straight wire. Okay, so I hope these 2 points are clear। इनफाइनाइट लेंथ को आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते
चलो नेक्स्ट एप्लीकेशन पर आते हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे ड्यू टू स्ट्रेट वायर, फाइनाइट लेंथ स्ट्रेट वायर, और वो एग्जाम्पल्स इम्पॉर्टेंट है। सो सेट एक ये वायर है, उसको ट्राई करो आप। एक ये वायर है, इस वायर में करंट इस तरीके से प्रोवाइड कर दिया गया है कि एंड पॉइंट नहीं पता चल रहा है। ये वायर है पूरा ABCD, ठीक है, ABCD इज अ वायर, और आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है सेंटर पोजीशन पर। ये स्क्वायर शेप में ये वायर है, स्क्वायर शेप में है, और सेंटर पॉइंट पर यानी यहाँ पर हम P पॉइंट ले रहे हैं, P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस स्ट्रेट वायर। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो AB इज अ फाइनाइट लेंथ वायर, स्ट्रेट वायर, BC इज फाइनाइट लेंथ स्ट्रेट वायर, CD एंड DA ऑल आर फाइनाइट लेंथ स्ट्रेट वायर, ठीक है। तो हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन में जब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है तो सबसे पहले हमें एक चीज़ चेक कर लेनी चाहिए कि डायरेक्शन क्या है। हो सकता है कि डायरेक्शन ओवरऑल जीरो आ जाए, तो अगर जीरो आ जाता है यानी नेट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ जा रही है, तो उस केस में हमें बायो-सैवर्ट लॉ अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी, ठीक है। इट इज़ अ वेरी शॉर्ट ट्रिक, इसको समझो अच्छे से। क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हम डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, और डायरेक्शन के लिए मैंने पूरा एक लेक्चर बनाया हुआ है जिसमें मैंने सारे रूल्स, सारे लॉज बताए हैं डायरेक्शन के लिए। सो ये राइट हैंड हम यूज़ करते हैं, राइट हैंड पाम रूल। तो इस रूल के अकॉर्डिंग्स में क्या है कि दिस थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द फिंगर्स आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पॉइंट एट विच वी आर कैलकुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये फिंगर्स उस पॉइंट पर रखनी है उस पॉइंट की तरफ जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। सो बाई पुशिंग फ्रॉम बैक साइड, पीछे से पुश करेंगे, तो वॉट एवर बी द न्यू डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो वी विल अप्लाई हियर, AB में करंट ऊपर की साइड जा रही है, सो वी विल अप्लाई दिस लॉ AB, ठीक है, और P पॉइंट पर इंडिकेट किया, ये AB वायर है, P पॉइंट पर इंडिकेट किया एंड द फिंगर्स आर मूविंग डाउनवर्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड AB वायर की वजह से किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड। क्रॉस बना दिया, क्रॉस इंडिकेट द इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। नाउ BC वायर चेक करते हैं, BC वायर आपका ऐसे है, तो फिंगर जो होगी, हैंड जो होगा इस तरीके से रखेंगे आप, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और क्योंकि करंट का डायरेक्शन B to C है, तो B to C ये करंट है, थंब इज करंट। अब यहाँ बाय पुशिंग फ्रॉम बैक साइड इनवर्ड आ रहा है, इनवर्ड आने का मतलब BC पोर्शन में भी इनवर्ड आ गया। अब CD में देखें, CD में देखेंगे तो भी इनवर्ड आ रहा है, यहाँ पर करंट कैरिंग एलिमेंट एंड इनवर्ड पोर्शन, तो ये भी अंदर चला गया। और AD में देखेंगे तो भी अंदर जा रहा है, ठीक है, ये AD वायर अंदर जा रहा है, तो दिस वन इज इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। दैट मीन्स व्हाट कि ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड जो P पॉइंट पे निकल रही है वो 4 फाइनाइट लेंथ वायर जो हमने लिया है उसके बेसिस पर अंदर की साइड आ रही है, यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जानी चाहिए इस केस में, B इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, 4 वायर्स की जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसका एडिशन। अगर इसमें ऐसा कुछ होता कि एक की इनवर्ड आ रही दूसरे की आउटवर्ड आ रही है और आपको पता है कि सारे वायर की लेंथ सेम है, अगर ये स्क्वायर है, दिस वन इज ए स्क्वायर, मैंने पहले ही बताया था, तो ये स्क्वायर होने पर इसका मतलब क्या है, साइड जो है इसकी सेम है, इक्वल है। साइड इक्वल होने पे फाइनाइट लेंथ की लेंथ जो है, फाइनाइट लेंथ वायर की लेंथ जो है दैट इज सेम। और फॉर्मूला क्या आता है फाइनाइट लेंथ के लिए, म्यू नॉट ओवर 4 पाई I ओवर A साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग्स में ये जो A वैल्यू होगी ये तो सब में सेम आएगी। A वैल्यू कौन सी होगी, सेंटर पोजीशन से P पॉइंट की देख लो, दिस वन इज A, ये A है, ठीक है। अगर ये A है तो ये तो सबके लिए सेम होगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड एक वायर यानी एक पोर्शन AB पोर्शन और CD पोर्शन पे ऑपोजिट आ रही होती तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाती, तो उसमें आपको कुछ निकालना ही नहीं था, सॉल्व ही नहीं करना था। सो इसीलिए सबसे पहले हम डायरेक्शन देख लेते हैं कि अगर ऑपोजिट डायरेक्शन आ जाता है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इक्वल लेंथ के लिए क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, एंड वी डोंट नीड टू फाइंड आउट, वी डोंट नीड टू कैलकुलेट इट इवन। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं जहाँ पर आप पहले डायरेक्शन देखते हो, और डायरेक्शन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वहाँ पर भी आपने इसी तरीके से करना है लाइक बोर्ड एग्जामिनेशन में। सो ओवरऑल रिजल्ट ये निकल के आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड तो 4 लेंथ ऑफ वायर के लिए इनवर्ड ही है। तो अगर ये इनवर्ड है
तो ये सारी की सारी एक ही डायरेक्शन होने की वजह से एड अप हो जाएंगी। अलजेब्रिक सम इसका जो निकलेगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से वो एडिशन ऑफ दीज 4 फील्ड्स होंगी। अब एक फील्ड की वैल्यू निकाल लो, बाकी सारी सेम है। b1 इज इक्वल टू b2 इज इक्वल टू b3 इज इक्वल टू b4। क्यों सेम है बताया मैंने आपको, लेंथ सेम है, एंगल सेम बन रहा होगा। ये एंगल बन रहा है, φ1 और φ2 यही होंगे। एक वायर की बेसिस पे देखो, ये एक वायर है, ये CD आर्म आपने जैसे वहां पर लिया था, यहाँ पर भी ले सकते हो CD आर्म है। तो ऑब्वियसली ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये भी 45 है, तो ये 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री बन रहा है। ये इंडिविजुअल आपका 45 है। ठीक है, दिस वन इज 45, दिस वन इज 45, यानी φ1 की वैल्यू 45, φ2 की वैल्यू 45। अब यहाँ पर एक बार के बेसिस पे निकालोगे, बाकी बार में भी सेम सिचुएशन आ रही है बिकॉज हमने इनिशियली एक स्कैन लिया हुआ है। जनरली जब कॉम्पिटिशन में या बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, देखने में लगता है वो बहुत डिफिकल्ट है, पर अगर उसका आप एक सिरा जैसे कहते हैं ना कि एक अगर उसका हिंट निकाल लो तो वो अपने आप ही पूरा सॉल्व हो जाता है। सो दैट इज द मेन थीम ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। बट फॉर सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन योर बेसिक कंसेप्ट, योर बायर-सेवर्ट लॉ मस्ट बी वेरी क्लियर कि एंगल कहाँ से बन रहा है, कौन सी एप्लीकेशन लगानी है, दैट ऑल मस्ट बी वेरी क्लियर। तो यहाँ पर इन सब की वैल्यू सेम है। अब हम एक की किसी की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसका 4 टाइम्स कर देंगे तो एडिशन ऑफ 4 वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है, हमने क्या किया कि म्यू नॉट ओवर 4 पाई, तो ऐसा रखना है, आई करंट फ्लो कर रही है ओवर ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज ए, हमने ए लिया हुआ है। ठीक है, ये लेंथ हो गई ए। अब अगर ये ए है और ये जो आपकी साइड है, ये साइड पूरी की पूरी साइड को फाइनाइट लेंथ है, फाइनाइट लेंथ को एल ले लेते हैं। अगर सपोज लेंथ एल है, साइड जो इस स्क्वायर की साइड दी हुई है वो एल दी हुई है और ये पोर्शन ए है, तो ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? अगर ये एल है तो ये भी एल होगा और ए की वैल्यू हो जाएगी l/2। ठीक है ना, l/2। तो अगर आपकी साइड लेंथ दी हुई है तो ए के बेसिस पर ए की वैल्यू को हटा करके आप किसको रखेंगे, साइड की वैल्यूज रखेंगे। ये तो हो गई। उसके बाद आप देख लो कि आप BP की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ये क्या है, ये हाइपोटेन्यूज का ये डायगोनल का हाफ पार्ट है। डायगोनल BD होता है और डायगोनल इज इक्वल टू क्या होता है, साइड √2। स्क्वायर के लिए क्या होता है, अगर हम BD की बात करें तो BD इज इक्वल टू हो जाएगा साइड √2 यानी L√2। साइड की वैल्यू हमने कितनी ली है, L। तो अगर BD साइड √2 है तो BP कितना हो गया, ये हाफ ऑफ द डायगोनल, दैट इज BD डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स L√2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो आप यहाँ पर A को तो सबसे पहले रिमूव कर दो। आपके क्वेश्चन में साइड ऑफ द स्क्वायर दिया हुआ है, A की जगह पे L डिवाइडेड बाई 2 आ गया। म्यू नॉट ओवर 4 पाई I ओवर A साइन φ1 यानी साइन 45 प्लस साइन 45। आपने इस फिगर को सॉल्व किया इसलिए, सो दैट इज म्यू नॉट ओवर 4 पाई, ये 2 और 4 से कैंसिल कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई। ठीक है, 2 पाई I ओवर L साइन 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2, 2 इंटू 1/√2। अब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट ओवर 2 पाई I L, यहाँ पर ये √2 इससे कैंसिल होगा तो ऊपर √2 आ जाएगा, दिस मच √2। तो ये तो आई एक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू V1 की। ठीक है, हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, एडिशन ऑफ दिस, सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, B इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ B1। सारी सेम है, B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू B3 इज इक्वल टू B4, तो आ जाएगी 4 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू, दैट इज म्यू नॉट ओवर 2 पाई L I √2, 4, this one is 2, so answer is 2√2 mu naught I over pi L. Okay, so that is the answer of this question. Okay, I hope this point is clear to you. This is very interesting. ये आपका solution आ रहा है। यहाँ पर L क्या है, length of the square,
जो क्वेश्चन में दिया होता है हमें आंसर उसकी फॉर्म में निकालना होता है। हमने यहाँ पर साइड दी हुई थी तो साइड के फॉर्म में हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाली है। ओके, सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन में बी आस्क्ड। अब नेक्स्ट और वैरायटी ले लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। एक ये ले लिया, ऐसे है वायर, करंट इस तरीके से फ्लो कर रही है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ इस पॉइंट पर निकालनी है, पी पॉइंट पर, बाकी कुछ नहीं दिया हुआ है। ये यहाँ वायर जो है इधर से बैटरी से कनेक्टेड होगा, उस वायर के बेसिस पे नहीं, यहाँ पे ये जो वायर है ना इसके बेसिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट पर ले लिया है पी पॉइंट, तो उस बेसिस पर मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालनी हो तो क्या करेंगे। अगर पी पॉइंट यहाँ लिया हुआ है तो सबसे पहले तो इस वायर की नेमिंग कर दो, ए बी सी डी, ये वायर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फाइनाइट लेंथ वायर जो हमने लिया था, जो भी आप डेरिवेशन करते हो ना उसकी फिगर को हमेशा अपने माइंड में रखो। ये ऊपर सी था, नीचे डी था, ये हमने लिया था फाइनाइट लेंथ, और सेंटर पोजीशन से हमने पी पॉइंट लिया था, ठीक है ना। यहाँ पर हमने एंगल ले लिया था, दिस वन इज φ1 और ये एंगल ले लिया था φ2। अगर ये पॉइंट शिफ्ट होते होते नीचे आ जाए, यहाँ डी पर आ जाए, यहाँ से शिफ्टिंग हो रही है डी पर आ जाए, तो क्या होगा। सी पॉइंट की तो यहाँ से लेंगे, डी पॉइंट की इधर से लेंगे, ठीक है ना वैल्यू। तो जो एंगल φ2 था वो कितना हुआ, φ2 एंगल पहले देखो कहाँ से, हॉरिजॉन्टल लाइन से लेकर डी तक की। अब अगर φ2 की यहाँ पर देखें तो φ2 की वैल्यू हो गई 0। φ2 हॉरिजॉन्टल में अपने आप ही आ गया, ये शिफ्टिंग यहाँ पर जो थी ये हॉरिजॉन्टली अपने आप नीचे शिफ्ट हो गया, तो इसका मतलब φ2 तो खत्म हो गया। ये नीचे वाला जो एंगल था दिस वन, इसको हमने धीरे धीरे कम करते हुए हॉरिजॉन्टल पे ले आए। हॉरिजॉन्टल पे लाने पे एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 0, तो φ2 0 हो गया, φ1 आपका बचा। φ1 की कुछ भी जो भी वैल्यू होगी, अब फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला क्या था, b इज इक्वल टू μ0/4 पाई i ओवर a साइन φ1 प्लस साइन φ2, ये था। इसमें φ2 की वैल्यू को 0 कर दिया, φ1 आपका एज सच रहा, जो भी एंगल आपका निकलेगा, और φ2 0, साइन 0 इज 0, तो दूसरा एंगल तो चला गया, ठीक है। देखो हर एक केस जो होते हैं वो आपको एज सच रटने नहीं होते हैं, वो सिचुएशनल बेस्ड चेंज होते जाते हैं। तो अपनी इतनी प्रैक्टिस करो कि उन सिचुएशन, उन सारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग्स में आप वैल्यू पुट करना सीख जाओ। खुद से जितना करोगे यू विल लर्न मोर। आप फीडिंग जितना लेने की कोशिश करोगे यू विल लर्न लेस। तो फीडिंग नहीं लो, आप खुद से करने की कोशिश करो, ठीक है। अब यहाँ पे वही सिचुएशन है, ये जो ये वायर दिया होता सीधी उसकी जगह पे ए भी वायर है, और यहाँ पे एंगल ये बन रहा है, दैट मीन्स φ2 एंगल तो गया, बचा क्या केवल ये है φ1 एंगल। उसी तरीके से अगर हम इस वायर का पूरा निकाल रहे होंगे तो सीधी वायर के लिए इस पॉइंट पर φ1 डैश ऐसे ले लिया, बाकी इस वायर के लिए भी पी पॉइंट पे निकालेंगे, वो तो मिडिल पोजीशन पर ही आ रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। ये क्वेश्चन में दे दिया गया है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू एल, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, गिवन है। तो सबसे पहले हमने क्या करना था, मैंने तो ये केवल ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में बताया कि फॉर्मूला कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला चेंज होना था इसलिए यहाँ पर अप्लाई करना था। अदरवाइज आपका सबसे पहला स्टेप होता है राइट हैंड पाम रूल लगाना। ऑब्वियसली फर्स्ट वायर के बेसिस पर करंट अपवर्ड, फिंगर्स कर्ल होकर के अंदर की साइड जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड फर्स्ट वायर के बेसिस पर। ए बी के बेसिस पे कैसी आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड। उसके बाद BC के बेसिस पे चेक कर लेते हैं, BC के बेसिस पर नीचे ये करंट हो गई, नीचे की साइड पे अंदर गया, तो इसका मतलब क्या है, हमने फिंगर्स नीचे क्यों की, पॉइंट नीचे है, BC के नीचे है, तो नीचे की साइड की फिंगर्स को कर्ल किया और इधर की साइड आया अंदर, तो BC के बेसिस पर भी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है इनवर्ड। उसके बाद CD के बेसिस पर भी चेक करो, CD के बेसिस पर भी इनवर्ड, सो CD मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होनी चाहिए, B इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3,
यहाँ पर है B1, इसके इस वायर के बेसिस पे B1 है, इस वायर के बेसिस पे B2 है और CD वायर के बेसिस पर आपकी है B3। B1 और B3 एक जैसी वैल्यू देंगे। आप देख लो, जब लेंथ ऑफ वायर सेम है, ठीक है, ये दोनों वायर की लेंथ सेम है, हॉरिजॉन्टल से एग्जैक्टली मिडिल पोजीशन पर आ रहे हैं, ये लेंथ भी आपकी L दी हुई है, तो ऑब्वियसली ये L/2 है, ये L/2 है। पूरी लेंथ L थी, BC की लेंथ L है, AB की लेंथ L है, ये L है, ये L/2 है। ये आप एंगल इनके फॉर्म में निकाल सकते हो, ठीक है, L के फॉर्म में। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो B1 इज इक्वल टू B3 है, दोनों एंगल सेम होंगे क्योंकि लेंथ इक्वली डिवाइड हो रही है, L/2 L/2, L एंड L, ठीक है। तो लेंथ इक्वली डिवाइड हो रही है, इसलिए ये दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है यहाँ पर इक्वल है B1 एंड B3 की। इसको हम जरा चेक कर लेते हैं कि कितनी आनी चाहिए। फॉर्मूला हमारा इस केस में ये वाला यूज़ होगा, तो हमने फॉर्मूला यूज़ किया μ0/4πI/A sin φ1, ये फॉर्मूला यूज़ हो गया। अब φ1 sin φ1 की हम वैल्यू भी निकाल लेते हैं, μ0/4πI/A sin φ1 इज इक्वल टू sin φ1 डैश, sin इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, होता है परपेंडिकुलर इज L और हाइपोटेन्यूज हमें ये है, इसको हम निकाल सकते हैं इन दोनों के बेसिस पर, L और L/2 के बेसिस पर। तो BP की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर B दिया था, ये P है, यहाँ पर साइड में ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म करना पड़ेगा, तो BP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये BP है, BP इज इक्वल टू BA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, यानी L स्क्वायर BP स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस L/2 होल स्क्वायर, L/2 था ये, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, दिस वन इज 4, दैट मीन्स 4 1 5 L स्क्वायर बाई 4, दिस इज BP स्क्वायर। तो BP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √5/2L, ये BP की वैल्यू है। ओके, क्लियर है ना। ये यहाँ पर देखो, ये 4 आया, आपका जा रहा है 4 + 1 5, तो ये रिजल्ट आ रहा है। इस रिजल्ट को आप sin φ की वैल्यू में यूज कर लो, sin φ इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी L परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज BP है, BP की वैल्यू इतनी है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू रख दो √5/2, दैट मीन 2 ऊपर चला जाएगा, L नीचे आ जाएगा, कैंसिल कर दो ये टर्म, आपके पास क्या टर्म आया, B1 इज इक्वल टू B3 इज इक्वल टू μ0/4π, ये 2 जो आपका है, इसको आप इससे कैंसिल कर दो तो ये 2π रह जाएगा, 2πI/√5A, ठीक है। अब A था क्या, यहाँ जो A था ये क्या था, A इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द लेंथ ऑफ द वायर, ये A है, ठीक है, ये A है, दिस वन इज A, लेंथ पोजीशन ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द लेंथ ऑफ द वायर, तो A की वैल्यू कितनी है, L/2। अब यहाँ पर A तो हमारे क्वेश्चन पे कहीं गिवन नहीं था, L गिवन था, तो हमने L के फॉर्म में रखा μ0I/2π√5, A की जगह L/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, तो आपका B1 इज इक्वल टू B3 इज इक्वल टू, वैल्यू आ रही है यहाँ पर μ0I/√5L, इतनी वैल्यू आ गई जो गिवन डेटा के बेसिस पर थी। अब इन दोनों का नेट निकालने के लिए हमें जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है, B1 + B2 + B3, ये हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन को यूज करेंगे, लेकिन पहले B2 तो निकाल लें। अब B2 के लिए सिचुएशन तो एज सच है जो हमने डेरिवेशन में ली थी, पॉइंट यहाँ पर है इन द लाइन ऑफ द सेंटर ऑफ दिस लेंथ, तो यहाँ पर देखो तो P पॉइंट इन द लाइन ऑफ द सेंटर ऑफ दिस लेंथ आ रही है, ये लेंथ कितनी है, ये BC आर्म से कितनी डिस्टेंस पर है, L डिस्टेंस पे, क्यों, ये भी L है तो ये भी L होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर A की जगह पे क्या रखना होगा, ये A था, तो A की जगह पे क्या रखना होगा, L, आप यहाँ पे रख करके देखो, तो B2 निकालने के लिए आपने क्या किया, μ0/4πI/A, अब A की जगह पे क्या आ जाएगा, L, यहाँ पर देखो तो A नहीं, A की जगह वैल्यू कितनी थी, L/2, यहाँ पर कितनी है, L है, इसीलिए B2 को अलग से निकाल रहे हैं, L आ गया, फिर क्या था, I/A sin φ1, sin
फाई वन प्लस साइन फाई टू, यहाँ पर दोनों ही वैल्यूज रहेंगी, ठीक है। अब फाई वन और फाई टू की वैल्यू देखो, यहाँ पे ये फाई वन है एक वैल्यू और ये फाई टू है, ठीक है। फाई वन और फाई टू की वैल्यू कैसे निकलेगी, साइन फाई वन, ऑब्वियसली ये इक्वल है क्योंकि सेंटर ऑफ द वायर पे जा रहा है, ये लेफ्ट सेंटर पे, तो फाई वन और फाई टू है तो इक्वल। एक की वैल्यू निकालनी है जो साइन फाई वन दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज बीपी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यानी कि बी और यहाँ सेंटर पोजीशन तक की, तो हाफ ऑफ द लेंथ हो गया, यानी अगर हम यहाँ पर साइन फाई वन की वैल्यू निकालें तो दैट इज परपेंडिकुलर दैट इज L/2 ओवर हाइपोटेन्यूज दैट इज ओवर बीपी, परपेंडिकुलर L/2 ओवर हाइपोटेन्यूज। ये साइन फाई वन की वैल्यू फाइव एंगल के बेसिस पे परपेंडिकुलर ये हो गया, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, सो L/2 ओवर हाइपोटेन्यूज इज बीपी। अब बीपी देखो हमने यहाँ पर निकाला था बीपी की वैल्यू √5/2L, 1/2 को कैंसिल कर दो, L को कैंसिल कर दो, तो आंसर आता है 1/√5, दिस इज साइन फाई। अब यहाँ पर दो बार साइन फाई है, साइन फाई वन इज इक्वल टू साइन फाई टू, ये दोनों एंगल सेम बन रहे होंगे क्योंकि सेंटर पोजीशन से जा रहा है, तो B2 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी म्यू नॉट ओवर 4πI/L साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू यानी 2 × 1/√5, साइन फाई की वैल्यू रख दी और 2 से मल्टीप्लाई कर दे क्योंकि दोनों सेम है, तो अब आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I ओवर ये 2 से ये कैंसिल करो तो आ जाएगा 2√5πL, ये B2 की वैल्यू हो गई। आपके पास टर्म्स मिल जा रहे हैं, ये देखो B1 इज इक्वल टू B3 और ये B2। आपको इन सारी वैल्यूज़ को आप इसको इक्वेशन नंबर दे सकते हैं, इन सारी वैल्यूज़ को आपको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके आंसर निकालना है, तो इक्वेशन नंबर 1 में आंसर निकालो। अभी ये बड़े स्टेप्स बड़े लग रहे हैं, जब आप खुद से सॉल्व करोगे तो आधे स्टेप्स तो आपके माइंड के अंदर ही हो जाएंगे, बाकी जो लिखने वाले स्टेप होंगे वो आप करोगे। सो दिस वन b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b1 प्लस b3 एक जैसे टर्म है तो इसका डबल कर दो, सो ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट I ओवर √5πL, ये तो b1 प्लस b3 की वैल्यू हो गई, और प्लस ऑफ b2 की वैल्यू इतनी है, इसको लिख लो म्यू नॉट I ओवर 2√5πL, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 2 ऊपर आ रहा है, बाकी नीचे का टर्म जो टर्म कॉमन है उसको कॉमन ले लो, यहाँ पे ये टर्म कॉमन है, म्यू नॉट I ओवर √5πL, इतने टर्म कॉमन है, म्यू नॉट I √5πL, म्यू नॉट I √5πL, ये टर्म कॉमन ले लिए, बचा क्या, 2 इधर बचा और 1/2 इधर बचा, इनको आपस में ऐड कर दो, सो म्यू नॉट I √5πL 22415/2, ओके। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, ये √5 से ये 5 कैंसिल होगा, √5 आ जाएगा, तो √5/2 म्यू नॉट I/πL, ये रिजल्ट आ गया मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपने करने होते हैं और इन क्वेश्चन के बेसिस पर ही आप बता सकते हो कि इसका लास्ट रिजल्ट क्या आना है। अच्छा, बायो-सेवर्ट लॉ में जो आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड को इनिशियली देख लो कि किन किन प्लेसेस पे पॉइंट की पी पॉइंट की किन किन वैल्यूज़ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 हो सकती है। ये तो आप दो जो मैंने आपको न्यूमेरिकल ही हैं, ये जो कराए हैं, आप इस तरीके के और भी शेप स्ट्रक्चर बुक्स डिफरेंट बुक्स से मिल जाएंगे, उन शेप और स्ट्रक्चर के बेसिस पर आप निकालना, आपको आंसर्स फाइंड आउट होते जाएंगे। सो ये स्ट्रेट वायर है, आइडियल एक कॉम्पोनेंट है इसका, करंट एलिमेंट जिसे हम कहते हैं, ये पॉइंट P है, एंगल इज थीटा हियर, ठीक है। इस पे बायो-सेवर्ट लॉ लगा था कि dB इज इक्वल टू होना चाहिए म्यू नॉट ओवर 4πI/dl साइन थीटा ओवर r²। तो वो कौन कौन सी वैल्यूज हैं जिनके बेसिस पर dB यानी मैग्नेटिक फील्ड 0 हो सकती है। पहले तो सबसे पहली सिचुएशन तो आपने ये जो एग्जाम्पल्स लगाए हैं, इन एग्जाम्पल से पता चल रही है कि आप डायरेक्शन पहले देख लो, डायरेक्शन अप एंड डाउन कहाँ आ रहा है, ताकि आप प्लस और माइनस यूज़ कर सको। यहाँ पे ये प्लस था, कोई ज़रूरी नहीं है हर प्लेस पे अलजेब्रिक सम प्लस में आ रहा हो। तो यहाँ पर वैल्यूज़ देखो, डायरेक्शन सबसे पहले देखा आपने डिफरेंट वायर्स फाइनाइट लेंथ वायर के लिए, उसके बाद यहाँ पर आप देखो
तो कौन कौन सी वैल्यूज के बेसिस पे डी बी जीरो हो सकता है? तो डी बी कैन बी जीरो व्हेन, सबसे पहला केस कि थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए। थीटा जीरो होने का मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है ये शिफ्ट होकर के यहाँ आ जा रहा है। यानी अगर किसी पॉइंट कोई सिचुएशन ऐसी दी हो कि मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पी पर निकालनी एंड द पॉइंट इज सिचुएटेड एट द करंट कैरिंग वायर, किसी वायर में ही है पॉइंट वो, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी जीरो की निकालने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। या उस वायर की सीधी लाइन में भी आ रहा है, क्योंकि अगर इस वायर में देखो ये वायर तो यहाँ तक खत्म हो गया, इस वायर की सीधी लाइन में भी आ रहा हो तब भी ये एंगल जीरो है। तो अगर उस वायर की सीधी स्ट्रेट लाइन में भी आ रहा होगा आगे कहीं, तब भी थीटा जीरो होने पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाएगी, बिकॉज साइन जीरो इज जीरो। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि करंट ही ना फ्लो कर रही हो, आई इज इक्वल टू जीरो। अगर यही कह दिया गया है कि एक वायर है, स्ट्रेट वायर है और मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे निकालनी है, करंट दी ही नहीं है क्वेश्चन में, या ये कह दिया गया है हैविंग नो करंट, तो व्हाट शुड बी द मीनिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? नो मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो दैट मे बी द सिचुएशन। एंड थर्ड सिचुएशन व्हेन मैग्नेटिक फील्ड मे बी जीरो इफ आर इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ठीक है। 1 over infinite is always zero। 1 over infinite क्या होता है? जीरो होता है। तो अगर r इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, यानी ये जो पॉइंट है इसकी डिस्टेंस करंट एलिमेंट से जो होती है उसे हम r कहते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ है कि पॉइंट इज सिचुएटेड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर, तो बिना सोचे इस फॉर्मूले को देख करके आपने r को इनफाइनाइट करके मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर देना है। तो ये तीन सिचुएशन ऐसी जिसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना ही नहीं होता है बायो-सेवर्ट लॉ में। इनिशियली वो तीन सिचुएशन में वैल्यूज मैग्नेटिक फील्ड की जीरो हो जाती है। सो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू, और ये एग्जाम्पल्स भी आपको क्लियर है। सो दैट इज ओवरऑल फॉर द एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ ड्यू टू finite length and infinite length straight wire, and that I am very sure that you will gain the more। एक मैं आपको एक होमवर्क दे देती हूँ, आप इसको होमवर्क के तरीके से ट्रीट कर लो। एप्लीकेशन नंबर 2 ड्यू टू सर्कुलर लूप, वो भी मैं बताऊंगी, बट अभी फिलहाल आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, और वो मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालनी है इस वायर के बेसिस पर। दिस वन इज द करंट कैरिंग वायर। यहाँ एक की लगी हुई है जो ओपन है, यहाँ पर भी एक की लगी है जो कि ओपन है, और करंट ये ABC के रेक्टेंगुलर शेप स्ट्रक्चर है, ये की है। की के ओपन करने पर और की के क्लोज करने पर ये सेंटर पोजीशन है पी पॉइंट की, आप डायगोनल के इंटरसेक्शन से निकाल सकते हो। करंट L फ्लो कर रही है, करंट I फ्लो कर रही है, इसकी लेंथ, इस रेक्टेंगल की लेंथ आपकी दी हुई है L, और ब्रेड्थ दी हुई है आपकी D। तो L B ले लेते ब्रेड्थ को, लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है, और आपको पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है व्हेन की K1 एंड K2, ये दो सिचुएशन है, ठीक है। करंट इस तरीके से यहाँ पर मूव करेगी, बट फिलहाल अभी ये सिचुएशन दी गई है कि पहला केस आप इसमें लिख लो, केस 1 K1 एंड K2 बोथ ओपन, फर्स्ट केस। केस नंबर 2 K1 इज ओपन एंड K2 इज क्लोज्ड, यहाँ पे करंट आई है, ठीक है। K1 is open, K2 is closed, and the third case is K1 is closed and K2 is open, ठीक है। And fourth case K1 and K2 both closed। हो गए क्वेश्चन, 4 केसेस इसमें बने, ठीक है। अब इन 4 केसेस के बेसिस पर आप मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर निकालोगे, लेंथ ब्रेड्थ सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, करंट एलिमेंट दिया हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन एक बार ट्राई करना फाइनाइट लेंथ स्ट्रेट वायर के लिए। तो ऐसे बहुत सारे आपको शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन मिल सकते हैं फाइनाइट लेंथ के। तो वहाँ पर आपको करना क्या है कि बायो-सेवर्ट लॉ अप्लाई करना है,
उसका स्ट्रेट फाइनाइट वायर और इनफाइनाइट वायर भी हम ले सकते हैं। इनफाइनाइट लेंथ वायर की कंडीशन को अप्लाई करके आपको निकालना है। So that's all for today, and next time I will come with the next application of Biot-Savart law, which is magnetic field at a point due to circular loop. Okay, we will discuss the various case of circular portion of the wire. So thank you, and I am very sure that you will do this homework.